تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ یونس، سورہ نمبر ہے 10 اور آیت نمبر ہے 63، آیت نمبر ہے 62 اور 63۔ تو میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، وہ آیت ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو، مطلب اللہ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سے عالموں سے، میں نے بھی سنا ہو، ایک عالم سے زیادہ، وہ ایک عالم ہے جو عالم صاحب ہے جو زیادہ یہی آیت پہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ الا انا لا خوف علیہم، یہ جو آیت ہے قرآن کی کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ غم ہے نہ کچھ خوف ہے۔ ارے ہاں بھائی یہ ہے، لیکن وہ لوگ کون ہے؟ یہ کبھی آپ نے سنا ان عالموں سے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آگے ہی ایک آیت ہے، جیسے اس آیت نمبر 62 ہے سورہ یونس کی، تو آیت نمبر 63 میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہے جسے ہم پہچانے ہیں کہ یہ لوگ ہے کون، جنہیں کوئی غم نہ کوئی خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، پرہیزگاری متقی پن اختیار کرتے۔ یہ آگے کی آیت تو آپ لوگوں کو اب تک بتا ہی نہیں ہوگی شاید کسی عالموں نے، تو یہ میں بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ لوگوں کو وہ عالم بتاتا ہے، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں، یہ جو آیت کا ترجمہ میں نے بتایا اور اس کے آگے والی آیت اس سے ہی ملا کر ہے، اگر وہ لوگ آپ کو بتائے کہ یہ الگ ہے تو ان کو میرے سامنے یا مجھے ان کے سامنے لے کر چلیے۔ اس میں نے بتایا وہ آپ کو کہ دو ہی باتیں ہوتی ہے، ایک تو کہنے، دونوں بھی جو بات کہہ رہے ہیں دونوں میں سے ایک صحیح کہہ رہا ہے اور ایک غلط کہہ رہا ہے، یہ دو باتیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں کا سامنے آپس میں ملنا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ اس میں سے پتہ چل جائے غلط کون بول رہا ہے اور صحیح کون بول رہا ہے۔ تو آپ یہ بات میری یاد رکھیے، اگر کسی عالم دین کے بغیر پیٹ میں مروڑ آئے میرا اس ویڈیو دیکھنے کے بعد، یا عوام الناس میں سے کسی کے پیٹ میں میرے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں مروڑ آئے، تو وہ ضرور یہ سب چیزیں کرے، لیکن یہ کب کرے کہ وہ عالم دین کو اور مجھے آمنے سامنے بٹھا کر کے ایک ویڈیو کانفرنس رکھے، اور اس میں دو ہی باتیں ہوں گی، یا تو میں غلط ہوں گا یا تو وہ غلط ہوں گے، صحیح جو بھی صحیح ہوگا وہ آپ کے سامنے وہاں پر ہو جائے گا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ آپ کو جو بتاتے ہیں نا، اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی ہو، کئی لوگوں کے دماغ میں تو یہ چلتا ہے کہ جو زیادہ حسن و جمیل انسان ہوگا، جیسا وہ عالم کے، مطلب صرف اس کا لقب عالم کا کیوں نہ ہو اور پہناوا عالم کے جیسا کیوں نہ ہو، اگر اس کا حسن و جمال اگر زیادہ ہوگا تو لوگ اسے ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ اس کے اندر پرہیزگاری اور متقی ذرا سی بھی نہ ہو۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات اور بھی قرآن شریف سے، کہ سورہ لہب، قرآن پاک میں ایک سورہ لہب کر کے ہے، یہ حضور کا ایک چاچا تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، ابو لہب کر کے۔ تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچا تھا، یہ کافر مرا ہے، اور یہ معاذ اللہ انہیں تکلیف بھی بہت دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر آپ مفسرین، کنز الایمان کی بات کر رہا ہوں میں، قرآن پاک جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو مفسرین نے ہمارے تفسیر بیان کی ہے، ان کا نام ہے نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورے مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں تو ابھی آپ لوگوں کو شاید پتا ہوگا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ میرے آقا کا حسن کیا تھا۔ لیکن وہ تفسیر میں جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو ابو لہب تھا، وہ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حسن و جمیل والا تھا۔ تو اس کا مطلب کیا ان لوگوں نے بھی اسے اچھا سمجھ لیا تھا؟ نہیں نا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود کنز الایمان میں، کلام الہی میں تفسیر بیان ہے، آپ اٹھا کر کے پڑھ لے سورہ لہب کی تفسیر، اسی میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو لہب کا حسن و جمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے زیادہ وہاں پر مکہ میں تھا، اور وہ کافر مرا ہے، حضور کا چاچا تھا وہ۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا حسن و جمال لے کر کے کوئی ڈائریکٹلی خلل اعلان اگر گناہ کرتا اور آپ کی سوچ میں یہ آتا ہو کہ ارے یار جانے تو اس کا حسن و جمال اتنا، اس بنا پر آپ اس کو اگر ولی سمجھتے ہو، تو آپ سے بڑا بے وقوف تو کوئی میں نے دیکھا نہیں، کیونکہ اللہ ہی کی کلام الہی قرآن میں ہے، جو عالم آپ کو بتاتے ہیں صرف ایک ہی آیت کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ ارے مگر وہ ہے کون؟ وہ آپ لوگوں نے کبھی پوچھا؟ تو اسی لیے میری طرف سے میں بتا رہا ہوں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کی آیت کے آگے آیت ہے
अल्लाह ताला फरमाता है जो ईमान लाए और परहेजगारी की मुत्तकी की, ये लोगों को कोई गम ना कोई खौफ होगा। और मुत्तकी सबसे कम दर्जे का वो होता है जो जाहिल काम से, फौश कलामी से बचे, झूठ से बचे, फौश कामों से बचे, और गुनाह कबीरा व गुनाह सगीरा का इल्म रखता हो, और गुनाह जाहिरी व गुनाह बातिनी का इल्म रखता हो, इनसे बचता हो। ये सबसे कम दर्जे का मुत्तकी। अभी आप लोग देखें कि आपके माशरे में जो वली बनने वाले लोग हैं, ये हकीकतन मुत्तकी परहेजगार है क्या? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, अभी मैं ये बात कट करके आप लोगों को बता रहा हूँ ज़कात के मसले पे, कि ये जो परेशानियां हम पर आती है ना, याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, अगर हमें ठोकर भी लगती है ना चलते समय ठोकर, तो ये भी हमारे अमाल की वजह से लगती है, क्योंकि हमारे बुरे अमाल ही हमारे सामने बुरा बनकर आते हैं। और अल्लाह ताला, याद रखना, हमारा अकीदा है अल्लाह ताला हर बुराई से पाक है। जब अल्लाह ताला हर बुराई से पाक है तो बुराई बंदे पे डालेगा कैसे? और ये जो बुराई हम लेते हैं, ये हम खुद हमारे हाथों से लेते हैं। जैसे कि आज हमने किसी के बारे में गीबत कर दी, या किसी का कुछ चीज कोई भी अमल में बुरा कर दिया, तो याद रखना वो चीज घूमकर हमारे सामने आने ही वाली है एक दिन, और हमारा भी उसी तरीके से या तो उससे भी बढ़कर बुरा होगा हमारा। यार ये होनी ही चीज है, क्योंकि वो बुराई को दावत हम खुद देते हैं, और वो बुराई खुद हमारी दावत पर ही आती है, ऐसे आती नहीं है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने देखा हूँ कि कई शख्स ऐसे गुमराह हो जाते हैं कि वो जब परेशानी उन पर आती है तो फिर वो ये नहीं देखते कि दीन में हम किस तरह कामिल है, क्या हमारे दीन को हमने सही तरीके से इख्तियार किया भी है या नहीं, नमाजें हम नहीं पढ़ते हैं, गालियां हम बकते हैं, लोगों की गीबत हम करते हैं, लोगों के अंदर फितना फसाद हम फैलाते हैं। ऐसा समझो कि हर वो बुरे काम करते हैं कि जिसपे कलाम इलाही एक बुरे काम की मिसाल बयान फरमा रहा हूँ, जो पिछली उम्मतों की थी, वो सारे काम हम करते हैं। और फिर बुराई जब हम हमारे पास आती है तो हमें लगे, शैतान जो हमारा नफ्स होता है वो बताता है कि जा तो फुला फुला बाबा के पास, फुला फुला ये बाबा के पास जा, वो बाबा के पास जा, ये तावीज देता है उसके पास जा। मैंने खुद ऐसे आलिमों को देखा हूँ, मेरे आंखों से देखा हूँ कि वो अपनी दुकान सजा के बैठते हैं पलंगों पे घरों के अंदर, और उनके रेट भी फिक्स होते हैं, भाव तक फिक्स होते हैं। जबकि आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है, फतवा रज़िया जिल्द नंबर 6 में, और सफा नंबर है 21, याद रखना, सफा नंबर है 21, जिल्द नंबर है 6। उसमें सवाल पूछा गया आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से, क्या क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरमतीन इस मसले में कि नजूमी, रम्माल, नजूमी जो आप लोगों को समझता है ना, जो तारों का सितारों का इल्म पहले था, जाहिर था अब नहीं है वो, अभी मैं बहुत टाइम हो चुका है, इन्हें तो बताया होता अभी क्यों नहीं है, पहले क्यों था। सितारों का इल्म रखने वाले, उसके बाद में रम्माल या ये फाल खोलने वाले जो होते हैं, और भी दिगर जो गैब बता देते हैं कि हाँ हो आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा ऐसा है, हाँ उसी ने ये किया, ऐसा, ये रम्माल शख्स होता है। और उसके बाद में फाल खोलने वाले, और उस पर उजरत लेने वाले। अगर उस पर उजरत लेते हो तो ऐसा समझो कि आला हजरत का उस पर फतवा है कि ऐसे शख्स की इमामत करना गुनाह, और वो हराम काम करता है, खलल ऐलान के साथ में फस्क करता है, उसे फांसी के मौलिन कहा गया है, उसके पीछे नमाज होगी ही नहीं, और ऐसा शख्स इमामत भी नहीं कर सकता। और ऐसा शख्स ये समझो कि आलिम के नाम पर लुटेरा है, जो खुद मुंह से पैसे मांगता हो तावीज के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह कह रहे हैं, ये मेरे घर की बात नहीं है। अगर ये बात को लेकर किसी के पेट में दुखे या किसी को तकलीफ हो तो याद रखना कि मैंने फिर भी आपको बता रहा हूँ कि 2 बात होने वाली है। आप ये वीडियो उसके पास में लेकर जाओ, मैं बता रहा हूँ जिसके बारे में, जो भी ऐसा शख्स होगा आप लोगों के माशरे में जो ऐसा काम करता है, उसे बताओ। अगर वो कहता है कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है, मैं तो सही हूँ, तो फिर मेरे और उसकी मुलाकात करा के बिठाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस चलाए, उसमें पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या वो सही बोल रहे हैं। अगर मैं गलत निकला तो आप लोगों की जो भी सजा होगी मुझे वो मंजूर है, और अगर सामने वाला गलत निकला तो मैं किसी को सजा नहीं देता भाई, सजा देने वाला तो मेरा रब है, बस वो झूठा साबित हो जाएगा, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो याद रखना, ऐसे परेशानी में फिर हम ऐसे लोगों का सहारा ढूंढते हैं, और वो लोग लूटने के लिए ऑलरेडी बैठे होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मेरे आंखों से देखा है, मेरे खुद घर वालों भी जाते थे, मेरे घर वालों ने भी देखा है। और मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर किसी के ज्यादा ही पेट में दर्द हो जाए तो फिर मैं बताऊंगा भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में कि वो ऐसे कौन करते हैं।
कुछ है ऐसे भी आलिम लोग जो करते हैं ऐसा, और बाकायदा उनके पास में रेट ऐसे फिक्स होते हैं कि सादा तावीज अगर आप लेंगे, सादा लिखाई वाला, तो उसकी कुछ कम रकम होगी, और एक जाफरान होता है, अगर उससे आप लिखा हुआ तावीज लेंगे तो फिर उसकी रकम उससे दुगनी हो जाएगी, क्योंकि वो जाफरान से लिखा जाता है। और ऐसा शख्स हराम काम कर रहा है, ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमा रहे हैं। और अगर मैंने तो अभी सिर्फ किताब का हवाला दिया, इंशाल्लाह वक्त आने पर अगले वीडियो में मैं आपको वो सफ़े के साथ में बता दूंगा, ताकि आप लोग किसी मुफ्तियान इकराम के पास वो स्क्रीनशॉट लेकर जाएं और उन्हें बताएं क्या ये बात सही है कि आप आपकी फतवा रज़िया में हमें बताएं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम परेशान हो जाते हैं, तो हमारे अमाल हम देखते नहीं है, हमारे अमाल हम टटोलते नहीं है, क्या ये ऐसा क्यों है? याद रखना मेरे भाइयों, तो पहले हमारे अमाल हम देखे। और याद रखो मेरी बात, इतने रमजान आप लोगों के गए, ये रमजान ऐसा समझो कि मेरे बोलने के हिसाब से नहीं, जो बातें मैंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई है, उन पर सही अमल करके इतना साल आप ज़कात सही तरीके से अदा करके देखो, इंशाअल्लाह आपको पूरा साल भर में इसका रिजल्ट मिल जाएगा इंशाअल्लाह। ये मेरा दावा है, ऐसा समझो, ये मेरा कल भी दावा है कि इंशाअल्लाह आपके साथ जरूर भलाई होंगी पूरे साल में। और वो जो माल आप हलाल माल में से ज़कात देना है आपको, और वो जो हलाल माल आपका होगा उसमें इंशाअल्लाह बरकत भी आप देखेंगे तो ऐसी होगी कि आपको खुद पता चलेगा कि यार हमने ये पहले क्यों नहीं किया। याद रखना मेरी बात। और अब तक के भी अगर किसी के साथ हो रहा होगा, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारी बातें सही होगी, मैंने तो आपको बताया सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है, क्योंकि खुद इसमें आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्त लगाई है कि तमलीक मतलब ज़कात किसी को भी दिए तो उसे मालिक कर देना, ये शर्त है। और अगर मालिक अभी ज़कात, मैंने आपको मदरसे में की जो बात बताई, एक बात और अर्ज कर देता हूँ अभी यहाँ पर, कि मदरसे के जो तलबा है, आप डायरेक्टली तलबा को दे सकते हैं। जैसे कि किसी मदरसे में बहुत गुरबा बच्चे, गरीब बच्चे, जिन्हें गुरबा कहा जाता है, गुरबा कहा जाता है, ऐसे बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, वाकई में वो गरीब हो, मुस्तहिक हो, लेकिन आपको वो उनके उस्ताद के पास में ज़कात नहीं देनी होती है, आपको खुद वो बच्चों के पास देनी होती है, और ये उनको मालिक बनाना होता है इस ज़कात का। क्या वो, ताकि वो पैसे वो अपने जरूरी इसमें सर्फ करे, या तो उनके वालिदैन के आप हवाले भी कर सकते हैं। अब मैं उस्ताद के पास इसलिए कह रहा हूँ कि मालिक तो फिर वो बच्चे बनेंगे नहीं, मालिक तो उस्ताद हो गया फिर आपने उस्ताद के पास दिया तो। और शरई इला का तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसमें दो शरई चीजें देखना जरूरी है, कि वो मतलब सब एक ही बात में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो शरई इला तब किया जाएगा कि बहुत सख्त ज्यादा जब जरूरत हो उस चीज में पैसों की, जब वो किया जाएगा। अब आप सोचिए कि मदरसे कितने हो चुके हैं, कितने इदारे हो चुके हैं, कितने आलिम फारिग होते हैं मदरसों से, क्या उन आलिमों को ड्यूटी मिलती है मस्जिदों में? बेचारे आलिमों की डिग्री लेकर के वैसे ही घरों में बैठे रहते हैं। मैं ये बात जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। ऐसा समझो कि आप लोग ये जानते हैं कि आपके जो माशरे की मस्जिदें है, उन मस्जिदों के अंदर कई आलिम साहब, मुफ्ती साहब ऐसे के 20-20 सालों से वो जमाए बैठे हैं, ना खुद इल्म सीख रहे आगे, ना आवाम को इल्म सिखाते हैं। 20-20 साल से हर जुमे में पब्लिक उनके सामने बैठी है, मगर आज भी गुमराही पर है। मैं देखता हूँ मेरे आंखों से। मैंने ऐसे भी आलिम देखे हैं कि 10-10 दिन मुहर्रम में बयान करते हैं, 10-10 दिन मुहर्रम में कई 100 सैकड़ों और लोगों के सामने बयान करते हैं, चीख चीख कर बयान करते हैं, इतनी बातें उन्हें समझाते हैं। लेकिन 11वें दिन क्या होता है, मैंने मेरे आंखों से देखा है, उसी स्टेज पर डीजे लगा हुआ होता है, और स्टेज के नीचे शरबत बनता है, और वो डीजे में जोर जोर से ढोल ढुमक्का का चलता है डीजे के अंदर, और कव्वालियां नाच चलती है। और इस पर भी मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है कि ये हराम है। और इतने भी नादान मेरे मुसलमान भाई है नहीं कि जिन्हें पता ही नहीं कि ये चीज हराम है, और ये वाकई में हराम है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 दिन जो आलिम बयान करते हैं, और उन्हें जब घर में, उनका भी घर उससे आसपास ही वही कहीं होता है, कि उनके कान तक आवाज नहीं जा रही है कि ये डीजे जहाँ बज रहा है, हाँ, फिर आकर बोलते क्यों नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मैंने जो 10 दिन किया उसका ये तुम्हारे को सिला मिला क्या? हाँ, आप लोग इस बात पर सोचिए कि भाई क्या चल रहा है माशरे में। हमारी आवाम इतनी गुमराही पर चले गई है, मगर ये आलिमों को अभी क्या बताऊं मैं, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, और सब आलिम बुरे नहीं है। मैं ये भी बात कह रहा हूँ कि सब आलिम और मुफ्ती बुरे नहीं, कुछ इसमें से ऐसे है कि जिन्होंने
हमारे मुआशरे का बेड़ा गर्क करके रखा है। और जिस दिन वो मेरे सामने बैठेंगे इंशाल्लाह, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मैं खुद मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को भी दिख जाएगा इंशाल्लाह उस दिन ही, कि मैं इन लोगों को कुरान की 1 या 2 आयतों में ही मैं ऐसे बता दूंगा कि वो आयत, वो खुद क्या, मतलब उनकी खुद दिल कल्बी तमन्ना क्या है और वो खुद क्या कर रहे हैं, ये मैं कुरान से साबित करूंगा। ये खुद मैं कब बात कर रहा हूँ कि ये मैं कुरान से ही साबित कर दूंगा डायरेक्टली उनको, जब मेरे सामने वो लोग बैठेंगे तो। क्या उन्हें बोलने के लिए जगह ही नहीं रखूंगा। अगर वो कुरान, अगर वो ये मेरी बात का इनकार करेंगे तो कुरान के आयत का इनकार लाजिम आएगा। याद रखना आप मेरी बात को। अगर ऐसा किसी को होता है मेरी ये बातों सुनकर के, जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो से किसी को तकलीफ होती है, तो वो तकलीफ को अपने जहन में ही रखे, अपने कल्ब में ही रखे, ज्यादा जोश में ना आए। क्योंकि अगर दीन की जानकारी नहीं है तो वो आलिम के पास में जाकर मेरा ये वीडियो बताए, और अगर वो कहता है कि ये गलत बोल रहा है, ये भटक गया है, या किसी अलग फिरके से दिख रहा है, तो आप लोग उससे कहना कि भाई आप ऐसा मुंह दबानी ना कहे, हम लोग इसको सजा देना चाहते हैं, जिसका वीडियो है आप इसके बारे में इसके सामने बैठकर इसे गलत साबित कर दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। और मैंने फिर बताया आप लोगों को, फिर बताता हूँ कि 2 ही चीजें होने वाली है। जब दो तरफ से कुछ बातें हो रही है, इधर से भी वही बात और इधर से अलग बात, तो इसमें से दोनों में से एक तो गलत है, दोनों भी सही है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, आपस में इनका मिलाना जरूरी है। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये गलत है या ये गलत है, दोनों में से कौन गलत है और कौन सही है, आपको इसका फैसला करना होता है। ये नहीं कि आपका शैतान ने आपको भड़का दिया, फिर आप भड़क के सामने वालों को, जैसे कि जो भी आप गलत फैसला लेने से बेहतर है। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो के आखिर में बता दे रहा हूँ कि दिमाग से काम ले, और इतनी भी गुमराही पे मत चले जाइए कि आखिर का अंजाम आपका बहुत बुरा हो। याद रखना मेरी बात। और भी इस वीडियो से कुछ रिलेटेड बात रहेगी इंशाल्लाह, तो मैं और भी अगला वीडियो बनाकर डालने वाला हूँ। और जो जो बातें मैंने बताई है उस पर इंशाल्लाह अगर मुझे जमा, तो ये फतवे का भी मैं एक पेज लगा कर डालूंगा, आप स्क्रीनशॉट मार लेना। और जो मैंने बताया हूँ कि जो ऐसे अमल करते हैं आमिलीन, वो अमल करना मैं गलत नहीं साबित कर रहा हूँ, मैं भी इसका कायल वही हूँ, समझो कि ये जायज है। मगर कब जायज है? अगर कोई शख्स परेशानी में आकर खुद आपके पास में अचानक से आ जाता है, यूं नहीं कि आपने दुकान खोल दी और लाइन लगाकर लोग बैठे, ये बात तो कतई मुनासिब नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि अचानक से कोई आता है, फिर आप उस पर दम करते हैं, क्योंकि ये हदीसों से साबित है दम करना, दम का। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अचानक में अगर होता है और आप उससे उजरत नहीं लेते और वो खुद उसकी तरफ से कुछ दे रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। और मेरे इमाम अहले सुन्नत, मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि का फतवा रजिया में एक वाकया है। क्या उनके पास में एक शख्स आया था फजर की नमाज के बाद में, रिवायत में नमाज के बाद का भी जिक्र है और सुबह सादिक का जिक्र है। तो वो तावीज लेने के लिए हाजिर हुए वो सामने वाले शख्स, और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया, नहीं सॉरी, गलती हुई, मेरे से मिस्टेक हुई। वो एक तोहफा लेकर आए थे आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि के पास में, क्योंकि वो एक चीज, एक वो मिठाई जमाते थे। उस वक्त की सर्दी बहुत डेंजर होती थी, उस वक्त में एक वो मिठाई जमाते थे वो सर्दियों में, जब फ्रिज वगैरह नहीं थे। तो वो एक हांडी उन्होंने जमाई थी जो मिठाई की, वो लेकर आए थे आला हजरत की बारगाह में, और फरमाया क्या हुजूर ये मेरी तरफ से तोहफा है। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि इसकी एवज में कुछ लेना तो नहीं ना आपको। ये आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने 3 बार उनसे पूछा, वो कहने लगे नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने वो हंडी लिया और अपने खादिम को दिया और कहा कि इसे अंदर रखवा दो। फिर उतने में आला हजरत रहमतुल्लाह ताला जब अंदर बढ़ने लगे घर की ओर, तो फिर वो शख्स कहने लगे क्या हजरत एक तावीज चाहिए था। फिर आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने मुस्कुराकर फरमाया कि मैंने आपसे पहले ही पूछा कि इसके एवज में कुछ चाहिए क्या, मैं तावीज के एवज में कुछ नहीं लेता। ये बात आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि की, ये मेरी तरफ की नहीं है। और जो उनके नाम पे नारे लगा के जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं ऐसे आलिमों के लिए मैं ये बयान किया मैंने वाकया, ताकि पता चल जाए आवाम को भी कि ये बातें मेरे घर की नहीं। जब इतनी बातें मैं कर रहा हूँ तो कुछ तो बेस पे कर रहा होगा ना, मेरे पास में कोई तो किताबें ऐसी होंगी ना हमारे अकाबरीन की, जिस बेस पर मैं जिस बिना पर ये बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैंने कही इस पे अटल रहना, और आपको अगर बुरा लगे तो ये मेरा बयान में जो मैंने बताया वो फिर से एक बार इसे जरूर सुन लेना।
और अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह अगला वीडियो मेरा जल्द ही आएगा, और याद रखिएगा रमजान में मैं और भी आपको कुछ वीडियो बताऊंगा। अब अगला वीडियो मैं इसी वीडियो से रिलेटेड बनाने वाला हूँ, और इसमें कुछ ऐसा भी बताऊंगा मैं कि जो कुरान हाफिज आज हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, और उनकी कुरान की जब मारिफत उन्हें नहीं है तो ये कितना नुकसानदायक है हमारे लिए आज के ज़माने में। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, और वो भी कुरान और हदीस से ही बताऊंगा आपको। इस बात से आप बिन फिक्र रहे, ताकि मुझ पर कोई उंगली ना उठा सके कि इसने इसके घर से बातें बना कर लाया है। तो इसीलिए अब मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो इंशाल्लाह जल्दी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और जो भी वीडियो में मैंने बातें बताया हो, ये मेरे माशरे के नौजवान, मेरे दीनी भाई याद रखे, ज्यादा तैश में ना आए, ज्यादा जोश में ना आए, और किसी के पीछे गुमराही में इतना भी ना चले जाए कि अपना ईमान से आप हाथ धो बैठे। याद रखिएगा, ये दौर वो चल रहा है जो दौर में हमें ईमान की मजबूती करनी चाहिए, और भी ना कि उसकी मजबूती को तोड़ना चाहिए। अपना ईमान बचाकर अगर लेकर चले गए तो ये अल्लाह का, हमारे रब का वादा है कि अल्लाह ताला हर गुनाह बख्श देगा सिवाय कुफ्र और शिर्क के। तो याद रखना, ईमान पर खात्मा होना बहुत जरूरी है हमारे लिए ये। चलिए इंशाल्लाह अगले वीडियो में वापस हम मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।